জয় যিশু অনুগ্রহ পরিবার। আর একবার আমরা আজকে এই ড্যানিয়েল প্রার্থনা, যেটা আমাদের 21 দিনের হচ্ছে, আজকে হচ্ছে 8th ডে। আর আজ থেকে আমাদের 12 ঘন্টার ফাস্টিং শুরু হয়েছে। তার মানে আমরা দিনে একবার খাবার খাবো। আর জানি না এই বছরে বিশেষ করে আমি অনেকের কাছেও শুনেছি, আর আমার ব্যক্তিগত জীবনের যে এক্সপিরিয়েন্স, সেখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি যেন এই বছরের প্রার্থনাটা যেন ঈশ্বরের কাছ থেকে একটা নতুন বল, শক্তি আর সামর্থ্য পাচ্ছি। কারণ কি, প্রভু আমাদের মধ্যে কিছু অদ্ভুত কার্য করতে চলেছে। আমাদেরকে প্রভু প্রস্তুত করতে চলেছে তার মহান উদ্দেশ্যে। আর এর আগে আমরা বারংবার আপনাদেরকে শিক্ষা দিয়েছি যে প্রভু যিশুর আশা খুব সন্নিকটে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত প্রভু এসে পৌঁছায়নি। তাহলে কিসের অপেক্ষায় আমরা রয়েছি? দেরি কেন হচ্ছে? কারণ কি, প্রভু তার কনেকে সাজাচ্ছে। সেই কোণে কারা? সেই কোণে হচ্ছে আমরা, আপনি, আমি, যারা প্রভুর জন্য সুদূর আগ্রহতে অপেক্ষা করছে যেন প্রভু খুব শীঘ্রই আসে আর আমাদেরকে নিয়ে যায়। কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত সে আসবে, আমরা যেন বিশ্বস্ততার সঙ্গে আর বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তার দিয়া কাজগুলোকে যেন করতে পারি। হালেলুয়া। আজকে এই বাক্যর দ্বারা আমি আপনাদেরকে উৎসাহিত করতে চাই যেন আমরা এই সময় প্রকৃত খ্রিস্টের সন্तान संतति কেমনভাবে হয়ে থাকবো। किस तरह हम लोग सचमुच परमेश्वर का बेटा और बेटी बन के रहे। हमारे जीवन के चरित्र बीते कुछ महीनों से मैं परमेश्वर के उस पवित्रता के कार्य को बहुत सामर्थ्य रूप में मैं व्यक्तिगत जीवन में देख रहा हूँ। मैं हमारे पासवानों के जीवन से देख पा रहा हूँ, और जो परमेश्वर के दास है भिन्न भिन्न जगह में, वो भी एक ही बात को कह रहा है कि परमेश्वर पवित्र हैं और परमेश्वर अद्भुत कामों को कर रहे हैं। आइए देखते हैं भजन संहिता 101 के पूरे चैप्टर को हम पढ़ेंगे और देखेंगे वचन में क्या लिखा गया है, क्या कहता है। आइए हम बांग्ला में पढ़ेंगे। भजन संहिता 101 আর 1 পদ বলছে, আমি প্রেম এবং ন্যায়ের গান গাইব, প্রভু আমি আপনার उद्देश्य গান গাইব। आमीन। तो इस वचन में हम लोग সাফ রীতি में এই বাক্য তো আমরা সত্য করে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ঈশ্বর হচ্ছে প্রেমের ঈশ্বর আর न्यायाधीश, माने से न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो प्रेम से भरा हुआ है मगर वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर क्या प्रेम हमें सही चीज को करने के लिए मदद करता है। परमेश्वर के प्रेम हमें परमेश्वर के राह में चलाता है। दोस्तों, अगर परमेश्वर की इस महान प्रेम को आप समझ जाएं तो आपके जीवन में परमेश्वर की भरपूरी आप देख पाएंगे। आप परमेश्वर की नज़दीक आ पाएंगे। आप परमेश्वर कितना महान है, उसकी महानता को आप समझ पाएंगे। दोस्तों, मगर प्रेम के और एक दिक्ष है और एक दृष्टिकोण है, वो है अनुशासन। सब बोलिए अनुशासन। प्रभु আমাদেরকে ভালোবাসে, কিন্তু প্রভুর ভালোবাসা কিন্তু তার अनुशासन। अनुशासन का मतलब कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग सही मार्ग में चलें। जब हम लोग गलती करते हैं, अगर भजन संहिता 23 देखेंगे, उसके लाठी और सोंटा हमें सही मार्ग में लाता है। যখন আমরা ভুল করি, সে আমাদেরকে সঠিক মার্গে নিয়ে আসে, আমাদেরকে প্রত্যেক সময় অনুশাসন করে, আমাদেরকে ঠিক রাস্তায় চলার সাহায্য করে। ভাই বোনেরা, আমরা যদি সত্যি বলি প্রভু ভালোবাসা, তাহলে আমরা যেন তার বাক্যকে ভালোবাসতে পারি, আমরা যেন তার বাক্যর অধীনে জীবনযাপন করতে পারি। ভাই বোনেরা, আজকের এই দিনে, आज का इस दिन में मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि प्लीज़ उसकी अनुशासन जब आपके जीवन में आता है, जानिए कि वो उसका प्रेम है। अगर वो अनुशासन आपको नहीं करेगा तो आप बिगड़ जाएंगे, आप मार्ग से भटक जाएंगे, सच्चाई को से दूर चले जाएंगे।
और दूसरी बात यहाँ कहता है कि परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। परमेश्वर आपका संग बुरा होने नहीं देंगे। প্রভু সব কিছু দেখছে, প্রভু খারাপ হতে দেবে না। আপনার বিরুদ্ধে যে যাই করুক না কেন, কিন্তু যদি প্রভু আপনার সাথে থাকে, কে আপনার বিপক্ষে থাকবে? তাহলে ঈশ্বরের চরিত্র তো আমরা কি দেখলাম? এখানে বলছে যে ঈশ্বর সেই ভালোবাসার ঈশ্বর और न्याय ईश्वर। परमेश्वर प्रेम का ईश्वर है और न्याय का ईश्वर है, और उसीलिए हम लोग उस महान प्रेम और उसकी न्याय की गीत को गाएंगे और उसको सर्वदा प्रशंसा देंगे। दोस्तों, लेट दिस बी योर लाइफस्टाइल। कीप प्रेजिंग, सिंगिंग for his love and justice. Let's go to the next verse. द्वितीय पद में हम लोग आते हैं। दूसरा पद कहता है, আমি একজন বিচক্ষণ লোকের মতো শুদ্ধ হৃদয় নিয়ে একটি শুদ্ধ জীবন যাপন করব। আপনি আমার গৃহর একান্তে অভ্যন্তরভাবে কখন আসবেন? এখানে কি বলছে? বলছে I will live a blameless life. इंग्लिश बाइबल में कहता है कि আমি একটা বিচক্ষণ লোকের মতন শুদ্ধ জীবন যাপন করব। दोस्तों, ये हमारा चॉइस है, हाउ वी लिव आवर लाइफ। इट इज आवर चॉइस। इट्स इम्पॉर्टेंट हाउ वी लिव। বাক্য পরিষ্কার করে বলছে যে এটা আমার নির্ণয় যে আমি আমার জীবনে পবিত্র জীবন যাপন করব। আমি শয়তানকে কোনো জায়গা দেব না, আমি লোকদের কোনো জায়গা দেব না যেন তারা আমার দোষ নিয়ে কথা বলে। আর যদি বাইবেল ভালো করে পড়ে থাকেন, এখানে পরিষ্কার করে বলছে যদি ঈশ্বরের ভয় আমরা করি তাহলে কিন্তু আমরা ঈশ্বরের জ্ঞান পাব। ঈশ্বরের ভয় ज्ञानेर शुभ आरंभ। उसीलिए दोस्तों, परमेश्वर को भय कीजिए। परमेश्वर की ज्ञान आपके जीवन में आएगा, और जब परमेश्वर की ज्ञान आपके पास आएगा, परमेश्वर की बुद्धि आपके पास आएगा, परमेश्वर की समझदारी आएगा, उसका वचन आपको सारे समय आपको मार्गदर्शन करेगा, तब आप पाप से दूर रहेंगे। आपके हृदय साफ रहेगा, आपके हाथ साफ रहेगा, आपकी सोच साफ रहेगा, पवित्र रहेगा। पवित्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज योर चॉइस माय फ्रेंड। ये आपकी निर्णय है कि आप परमेश्वर के लिए क्या एक ब्लेमलेस लाइफ जिएंगे। अगर आप जिएंगे दोस्तों, तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आपके साथ कोई हानि नहीं हो सकता है, आपके साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आपके पास आएगा। आपके मददगार परमेश्वर आपको बल देगा, आपके साथ रहेगा। वो आपके विरुद्ध, आपके शत्रु के संग लड़ेगा और उसे परास्त करेगा। और कहता है वचन में कि प्रभु, मैं अपने घरों में सही जीवन धारा जीऊंगा। आई विल लिव अ लाइफ ऑफ इंटेग्रिटी। प्रभु আমার গৃহেতে একান্ত অভ্যন্তরভাবে আমি জীবন যাপন করব। আমরা যখন আমাদের বাড়িতে থাকি আমাদের খুব রিল্যাক্স হয়ে যায়, আমরা আমাদের মনের কথা বলতে থাকি, কিন্তু যখন বাইরে যাই তখন আমরা সেজে গুজে বাইরে যাই। অনেকের জীবনে তারা দুরকম জীবন যাপন করে, বাড়িতে একরকম আর বাইরে একরকম। কিন্তু আজকে প্রভু বলছে আমার বাড়িতে যেন আমি সঠিক জীবন যাপন করতে পারি ভাই বোনেরা। that we may live a life of integrity in my house। जब कोई नहीं देख रहा है तब आपका जीवन कैसे है? हाउ इज योर पर्सनल लाइफ? पब्लिक में तो सब अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, सबका सामने में तो बहुत साधु लोग बनने की कोशिश करते हैं, मगर आखिर में क्या सचमुच आप अपने घर में भी साधु हैं? दैट्स इंपॉर्टेंट। सो गॉड इज टेलिंग अस, परमेश्वर हमसे कहता है कि हम लोग एक इंटीग्रेटेड लाइफ, एक ऑनेस्टी, एक সততার জীবন যেন আমরা জীবন যাপন করতে পারি, আমরা যেন পবিত্র জীবন যাপন করতে পারি। 3 পদ কি বলছে? আমার সামনে কোনো মূর্তি আমি রাখবো না। ওরকম ভাবে যারা আপনার বিরুদ্ধে যায় তাদের আমি ঘৃণা করি, আমি তা করব না।
3 পদ ইংরেজিতে বলছে, I will refuse to look at anything vile and vulgar. I hate all who deal crookedly. I will have nothing to do with them. এখানে কি বলছে? বলছে প্রভু, আমি কোনো খারাপ জিনিস আমার চোখ দিয়ে দেখব না। বাইবেল পরিষ্কার করে বলে যে আমাদের এই দুটো চোখ সেই প্রদীপের মতন। যখন প্রদীপ জ্বলে তখন অন্ধকার চলে যায় আর চারিদিকে জ্যোতির্ময় হয়ে যায়। আজকে ঈশ্বর আমাদের এই দুটো চোখ দিয়েছে। এই চোখ দিয়ে আমরা কি দেখছি? ভালো জিনিস দেখছি না অপবিত্র জিনিস দেখছি? যখন কেউ নেই তখন মোবাইলে আমরা কি দেখছি? যখন আমরা একাকিতে থাকি তখন আমরা চোখ দিয়ে কি দেখছি? বাইবেল বলছে যেন আমরা এই চোখ দিয়ে অপবিত্র জিনিস না দেখি। भाई बोनेरा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या देख रहे हैं, हाउ इज योर आईज, वेयर इट इज फॉलिंग, वहाँ कहाँ पड़ रहा है। बाइबल कहता है कि अगर आँख गलत जगह पड़ता है, पाप में पड़ता है, पूरा शरीर पाप में भर जाता है। अगर अंधकार चीज़ यानी कि गलत चीज़ को देख रहे हो, शरीर अंधकार हो जाता है। उसीलिए लोगों के पास आँख है मगर देख नहीं पाते, कान है सुन नहीं पाते, क्योंकि दोस्तों परमेश्वर जो सारी चीज़ों को हमें दिया है उसे सही रूप में उसकी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना है। आमीन। और बाइबल साफ रीति में कहता है कि आई हेट ऑल हु डील क्रूकेडली। बहुत सारे लोग हैं ना टेढ़े मेरा जीवन चलाते हैं, उसके जीवन में सच्चाई नहीं है, उसके जीवन में पवित्रता नहीं है। वो कहते हैं कि मैं नामधारी मसीह हूँ, प्रभु को मैं विश्वास करता हूँ, बट देयर लाइफ इज़ वेरी क्रूकेड। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का जीवन टेढ़ा मेढ़ा नहीं था, उसका जीवन सीधा था। उसीलिए दोस्तों हमारा जीवन भी सीधा कीजिए। बाइबल कहता है कि अपने ज्ञान में ज़्यादा बुद्धिमान मत बनो, अपने खुद के गुरूर में मत फंसो, क्योंकि वो बुद्धि नहीं है, वो तुम्हारा बेवकूफ़ी है, वो तुम्हारा अहंकार है। एक दिन वो सारी चीज़ ले डूबेगा। उसीलिए 4 पद क्या पढ़ते हैं? 4 पद में लिखा गया है, आमी सৎ থাকবো, आमी कोनो মন্দ কাজ করব না। 4 পদ कहता है कि আমি সত্য পথে চলবো, আমি খারাপ পথে চলবো না, আমি সেই সকল লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবো না, আমি সেই সকল বন্ধুদের সঙ্গে সংযোগ রাখবো না। প্রভু যার পথ সোজা নেই, যার পথ সঠিক নেই, হে ঈশ্বরের সন্তানেরা, আজকে আপনার জীবনটা কেমন? আপনি কেমন জীবন নির্ধারণ করছেন? হাউ আর ইউ লিভিং योर लाइफ? हु आर योर फ्रेंड्स? व्हाट आर यू टॉकिंग? कौन है तुम्हारे दोस्त? क्या बात करते हो? क्या देख रहे हो? क्या बोल रहे हो? हे परमेश्वर के लोग, फियर गॉड। ये समय परमेश्वर अपने दुल्हन को सजा रहा है, ये समय परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। क्या आप वो लोग हैं? क्या आप वो दुल्हन हैं जिसको परमेश्वर तैयार कर रहे हैं, जो सजने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आप परमेश्वर की आसरा में बैठे हुए हैं कि आपके परमेश्वर कब आएगा और आपको लेके जाएगा। आइए हम लोग 5वीं पद पढ़ते हैं। 5 पद আমরা পড়ি। 5 পদে কি লেখা রয়েছে? যদি কেউ গোপনে তার প্রতিবেশীর সম্পর্কে মন্দ কথা বলে, আমি তাকে চুপ করিয়ে দেব, আমি লোকেদের কখনোই উদ্বুদ্ধ হতে দেব না এবং তাদের ভাবতে দেব না যে তারা অন্যদের চেয়ে ভালো। दोस्तों, बहुत जल्दी বন্ধুরা, ভাই বোনেরা, পরিবারের লোকজন, খুব তাড়াতাড়ি, এটা যেহেতু इंसान का एक फॉलन नेचर है, उसीलिए लोगों की आलोचना करना बहुत पसंद करते हैं। বাংলায় বলে পরনিন্দা পরচর্চা। অধিকাংশের বাড়িতে কার বাড়িতে কি হয়েছে, কার বউ পালিয়ে গেছে, কার সংসারে কি ঝগড়া হয়েছে, এগুলো করতে হয়তো খুব ভালো লাগে, কিন্তু ভাই বোনেরা, ঈশ্বরের কিন্তু খুশি হয় না। আর সেই জন্য বাইবেল পরিষ্কার করে বলছে, কেউ যদি গোপনে তার প্রতিবেশীর সম্পর্কে মন্দ কথা বলে, আমি তাকে চুপ করিয়ে দেব। আজকে আপনি কি আপনার প্রতিবেশী, আপনার আত্মীয় পরিজন, আপনার বন্ধু ভাই, তারা যখন নেই তাদের সম্পর্কে কি আলোচনা করছেন? বন্ধ করুন যদি করে থাকেন, কি সেইটা ঈশ্বরকে মহিমা
দেয় না। 6 পদ কি বলছে? 6 পদ, আসুন আমরা 6 পদ পড়ে শুনব। আমি সমস্ত দেশের মধ্যেই সেসব লোকেদের খুঁজব যাদের ওপর নির্ভর করা যায়, এবং একমাত্র তাদের আমার সেবা করতে দেবো। যারা পবিত্র জীবনযাপন করে একমাত্র তারাই আমার সেবক হবে। পরিষ্কার করে বাইবেল বলছে, ভালো করে পড়বেন। বলছে যে প্রভু যারা বিশ্বাসযোগ্য মানুষ তারা আমার বন্ধু হবে, যারা পবিত্র জীবনযাপন করছে প্রভু তারা আমার সেবা করবে, তারা আমার বন্ধু হবে, আমার আত্মিক সন্তান হবে, আমার পরিবার হবে। ভাই বোনেরা, আজকে আপনার বন্ধু বান্ধব কেমন? কার সঙ্গে আপনি বসেন? আপনি বলছেন আপনি প্রভুকে বিশ্বাস করেন, কিন্তু আপনার বন্ধুকে? আপনি বলছেন আপনি যিশুকে ভালোবাসেন, আপনি কাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন? ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইংরেজিতে একটা কথা রয়েছে, সেখানে বলছে শো মি ইওর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড আই উইল টেল ইউ হু ইউ আর। তোমার বন্ধুদের দেখাও আর আমি বলে দেবো আসলে তুমি কে। আজকের দিনে ঈশ্বর চায় না আমাদের জীবনে এমন কোনো মানুষ থাকুক যে আমাদেরকে অপবিত্র করবে। ওই জন্য আমাদের কি প্রয়োজন? বিশ্বাসযোগ্য মানুষ। দেখি 7 পদ কি বলছে। 7 পদ বলছে আমি মিথ্যেবাদীদের আমার গৃহেতে গোপনে অভ্যন্তরভাবে बास করতে দেবো না। गॉड हेट्स लायर। परमेश्वर झूठा लोगों को घृणा करते हैं, हेट करते हैं। समझ जाइए, परमेश्वर पवित्र हैं, झूठ उसकी चरित्र में नहीं है। पहली बात, परमेश्वर सच्चा है, उसे हमें सच्चाई में चलने पड़ेगा दोस्तों। और दूसरी बात, हमें झूठ नहीं बोलना है और झूठे लोगों के संग कदापि हमारा कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन सारे, कभी कभी लोग बोलते हैं ओ मजाक कर रहे थे, झूठ बोल दिया, मैं तो मीन नहीं किया, मैं तो सीरियस नहीं था। नो 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 नो, you must be careful about every words that you speak. It should be intentional. You belong to Christ. तुम प्रभु के हो, तुम प्रभु का बेटा हो, तुम्हारा पिता का नाम परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। उसीलिए झूठों के संग दोस्ती मत करो। और आखिरी पद, 8वीं पद क्या कहता है? এই দেশে যেসব মন্দ লোক বাস করে সব সময় আমি তাদের ধ্বংস করব। তার মানে কি? মন্দতার সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াও। আবার আমি বলছি, जो गलत है उसके संग दोस्ती मत करो, उसके विरुद्ध में खड़ा हो जाओ। মন্দ লোকেদের আমি প্রভুর শহরে ছেড়ে যেতে বাধ্য করব। यानी कि जो गलत है वो मेरा शत्रु है। सुन लीजिए, इतना खोल के कोई नहीं बोलेगा। ये कुछ गहरी चीज़ों की भेद में आप लोग को सामने में लाता हूँ। যারা মন্দ লোক আছে তাদের আমি ধ্বংস করব, বাইবেল বলছে। ইংরেজি বাইবেল বলছে মাই ডেইলি টাস্ক, আমার প্রত্যেক দিনের কাজ কি জানেন? टू फ्रेट द विकेट आउट ऑफ द सिटी। शहर से बदमाश लोगों को भगाना है मुझे। यानी कि इसके संग मुझे दोस्ती नहीं करना, इसके संग हमें सलाह परामर्श नहीं करना है, इसके विरुद्ध हमें खड़ा होना है। अगर इसको नहीं तुम हटाओगे तुम्हारे शहर को वो ख़त्म कर देगा। उसीलिए परमेश्वर के साथ रहो, बन के रहो दोस्तों, প্রভুর সঙ্গে থাকো। মন্দ লোকের সঙ্গে হাসি মজাক করতেও যেও না, কারণ কি তুমি যে তোমাকে প্রভু ডেকেছে, প্রভু আমাদেরকে অধিকারী বানিয়েছে, প্রভু আমাদেরকে বলেছে উই আর मोर देन कॉन्करर्स, हमरा विजय से भी बढ़कर है, हम लोग जीते हुए हैं। वी आर चोजन पीपल, हम लोग चुना हुआ लोग हैं। वी आर द रॉयल प्रीस्टहुड, हम लोग परमेश्वर का याजक हैं। और वी आर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, इसका मतलब हम परमेश्वर के राजदूत हैं। मत भूलिए आप कौन हैं, मत भूलिए आपका परमेश्वर कौन है। डैनियल कभी भूला नहीं था उसकी परमेश्वर कौन है, और वो भी भूला नहीं था कि वो परमेश्वर के कौन लगते, वो कौन है। यू मस्ट अंडरस्टैंड हु यू आर।
एंड हु इज योर गॉड। दोस्तों, ये आपकी चॉइस है। घर में जाकर फिर से आप इस वचन को पढ़ सकते हैं। ये परमेश्वर की चरित्र है, प्यार, न्याय, पवित्रता, सच्चाई, और वो झूठों को पसंद नहीं करते हैं। तो हमारा जीवन क्या होना चाहिए? हम कैसे जिएंगे? जो परमेश्वर है उसकी जैसे उसके बच्चों को भी होना चाहिए। आइए अपने आंखों को हम लोग बंद करें और अपने आप को हम लोग देखें। आज हम परमेश्वर के सामने कहाँ खड़े हैं? लोग कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु को मानता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, बट वॉट इज योर कमिटमेंट? आज आपके समर्पण कहाँ है? आज आप कहाँ खड़े हैं परमेश्वर के संग? आपके जीवन कैसे हैं? क्या ये सारे गुण और चरित्र आपके जीवन में पाया जाता है? इस चीजों को आप और से एक बार सोचिए दोस्तों, और अपने अंदर में झांक के देखिए आप कहाँ खड़े हैं। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। अति दयालु परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता हम प्रार्थना करते, धन्यवाद तेरे वचनों के लिए। तेरे वचन हमें मार्गदर्शन कराता है प्रभु, तेरे वचन हमें सिखाता है, समझाता है प्रभु जी, कि तेरी सच्चाई के सामर्थ्य को दिखाता है प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन प्रभु, इस अंतिम दिनों में जहाँ शैतान कोशिश कर रहा लोगों को भरमाने के लिए, गिराने के लिए, खत्म करने के लिए, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, दया कर प्रभु जी, हमें बल दे, हमारे लोगों को बल दे, शक्ति दे पिता, कि उसके जीवन में प्रभु जी पाप के मार्ग को छोड़कर प्रभु तेरे और समर्पित बन जाए पिता। तेरी दया उंडेल दे प्रभु, तेरी कृपा उंडेल दे प्रभु, तेरी करुणा उंडेल दे प्रभु। हमें बल दे प्रभु, हमें शक्ति दे प्रभु, हमें सामर्थ दे प्रभु, कि हम आपके जैसे बन सके। तेरे नाम से प्रभु इन सारी प्रार्थनाओं को हम करते प्रभु जी। ये डैनियल प्रार्थना के समय प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भी सुन रहे हैं प्रभु, देख रहे हैं प्रभु, जो उनके दिल में गहराई से कार्य करे, उनकी आंखों को खोल दे पिता, कि वो जाने कि प्रभु तू पवित्र है और हमें भी पवित्र होना है। वो समझ जाए कि प्रभु उनके जीवन में परमेश्वर अपने बड़े बड़े चीजों को रखे हैं, उत्तम वस्तुओं को रखे हैं, चिन्ह चमत्कारों को रखे हैं, मगर प्रभु उनकी आंखों को खोल दे प्रभु, उनके मन को खोल, उनके हृदय को खोल दे प्रभु मुझे तू छू ले, मुझे दिन प्रतिदिन और तेरे करीब और तेरे पवित्रता में ढल दीजिए। धन्यवाद करते हैं यीशु तेरे नाम से, सारे आदर और महिमा तुझी को देते हैं यीशु नाम से, आमीन आमीन। मंडली प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू, और कल फिर मिलते हैं।